now Only one question hour. sentence. We have shifted, it's 12 already. Only Thank one, you. only one Thank you. sentence. Question hour. Question number 136, Dr. Amar Patnaik. Question number 1. Of the House. First supplementary. So, Honorable Minister has given an extremely extensive reply with clear outlines as to how domestic electronic production has increased and what would be done. I compliment him for the same. Sir, we know that the supply chains of electronic components were disrupted by the China-US war and of course the COVID-19 pandemic. And Taiwan took 21 years to attain global leadership in chip foundry manufacturing. I would like to know from Honorable Minister through you, sir, since the government is already aware of this issue, has any study been done and is there some kind of a plan to take care of this in the future? If some outlines could be mentioned. Thank you. Honorable member has raised a very valid point. In the global supply chain, today semiconductors have a very important role. From our side, we have done extensive consultations with all the stakeholders in the semiconductor supply chain, with the design firms, with the people who are working on packaging, with the people who are working on display fabs, people who are working on silicon fabs, people who are working on compound semiconductors. And based on all these consultations, a lot of good things have emerged. Already we have lots of schemes for supporting semiconductor manufacturing. I think within these parameters, there will be better results in the coming days. Thank you. Second supplementary. So, Honorable Minister has always said that Orissa is his karma bhumi. Now, in the answer to the section C and D of the question, he has mentioned that there are 3 or 4 facilities for semiconductor wafer fabrication. There is also the recognition that we need to work very fast and increase our manufacturing and production capacity manifold. So is there any plan for Orissa in this regard? Because Orissa, incidentally, is exporting the second largest exporter of software in the country currently. Thank you. Honorable Chairman, sir, Odisha, Honorable Prime Minister sanctioned electronic manufacturing cluster in 2016. I'll request through you, sir, and through Honorable Member that please expedite the construction work there. Development of that EMCs is still pending since 2016, sir. Thank you. Shri Sujit Kumar ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, semiconductor fabrication or chip design is a very complex and research-intensive process. And no one knows this better than Honorable Minister, who is so learned and so tech-savvy. Sir, yesterday also I had raised this issue of low spend on research in India. Only 0.7% of our GDP is spent on research. And in an answer to a previous question, Honorable Minister mentioned that about 100 odd crore is spent for research on semiconductors, which is abysmally low. So, sir, my request to you, Honorable Minister, my question to Honorable Minister is there any plan to increase this budget on research on semiconductor so that the brain drain can be reversed? Thank you. Honorable Member has studied at Harvard School, sir. He's a very learned, thanks to him for the compliments he has given, sir. What's important is the entire design ecosystem. Semiconductor design ecosystem has developed very nicely in the country, sir. Today there are more than 15,000 very good quality engineers, very highly qualified people who are working on semiconductor design ecosystem. So that is the basic strength that we have to leverage upon going forward. Based on those design ecosystems, we'll be doing the backward integration in the future, sir. Thank you. Srimati Geeta Urf Chandra Prabha. Srimati Geeta Urf Chandra Prabha. धन्यवाद महोदय। मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अब महिला किसानों द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में कोई विशेष योजना चलाई जा रही है? ये सवाल दूसरा है, प्लीज ये सवाल अलग है। इलेक्ट्रॉनिक्स
अच्छा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है मैडम, अगर इस पर पूछना हो तो आप माननीय मंत्री। ठीक क्वेश्चन नंबर 137 ऑनरेबल श्री केसी वेणुगोपाल जी। मेरा नहीं, मेरा Answer is laid on the 142 table. में था। Please. Answer is laid on the 142 table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री। 142 क्वेश्चन का था। Now, the government has decided to, given its notes to sell 30.8% of, 30.8% out of 54% of Concor for disinvestment. Now the government of India's policy is very clear. You are selling all the valuable assets of the country. There was a policy of disinvestment in UPA period also. What was the policy? That has been taken place, disinvestment has been taken place, where the loss-making company is there, that has to be sold. Now entire profit-making company is going to sell. That point of time, this disinvestment question is, I am asking the question. Yes. Whether the government decided to sell the profit-making company, and on what account the government has taken this decision. Thank you. One of the minister, one more point. On one hand, you are now reducing the concession given by the senior citizen for traveling the train. Put one question, please, please. Now, on the other One hand, question. you are disinvesting entire thing. This is One going to be question. the, now the private parties will have control put- entire you thing. have put already This one is question. for them only the corporate. You have put already one question. Sir, honorable member has put a very valid point. Let me just remind him that Concor disinvestment started when, sir? Concor disinvestment started in 94, 95. Who was in government then? Congress was in government, sir. So what is the point that he is raising, sir? Disinvestment of some of the public sector units has been a continuous process. Concor today is in an industry where there are more than 15 odd container train operators already there, sir, in the country. So what is the point he's making, sir? Even when Honorable LOP was railway minister, that time also there was a little bit of disinvestment of Concor. So it's a continuous process since 1994-95. What is the point? Disinvestment is what we are saying, sir. There is a difference between that. I am saying disinvestment. Sir, already, sir, already 94-95. नोट आपस में बातचीत क्लियर न करें। सर ऑलरेडी 94-95 में 20% कॉनकोर का इक्विटी डिसइन्वेस्ट किया गया सर। 95-96 में कांग्रेस गवर्नमेंट में वापस 3.05% किया गया सर। अगर टोटल करें इस पूरे पीरियड में कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में 24.35% डिसइन्वेस्टमेंट हुआ कॉनकोर का, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स के टाइम में 20.3। तो किसके टाइम में ज्यादा हुआ सर? कांग्रेस के टाइम में ज्यादा हुआ। क्या बात करते हैं सर? थैंक यू। सेकंड Let down. My question is, we are not against it. While if the proposal of once decided for disinvestment, already decided, why government is considering changing land leasing fees from existing 6% to 2.3%? Thank you. You already decided for disinvestment. Then why the land lease is coming down? Thank you. Decided Thank you, for. Gopal ji. Well, one more thing. My major Only question one is second whether the government will consider that. Only one whether question. One question. Sir, this is one of the most important questions. Now the government of India has already withdrawn the concession of senior citizen in the railway as a passenger. प्लीज Whether you are going to माननीय सदस्य Revoke माननीय it. सदस्य एक सवाल उनका आप जवाब दें प्लीज। Sir, the honorable member has asked a question on land lease policy that is very different from Concor disinvestment issue. The point is, प्लीज no, sir. Sir, प्लीज I said, sir, it's different. क्वेश्चन नंबर 130 नहीं 137 श्री नीरज डांगी जी। The question to the Honorable Minister through you, sir, is in case of disinvestment of Concor's management part, will the private management use the same employees from Concor or Indian Railways? If not, then what measures government is taking to secure their future? थैंक यू। Thank you, sir. Sir, some of the honorable members have been trying to paint a very different picture, sir. I just would like to clarify and put the things on, put all the facts on the, this is a very responsible house, sir. रेलवे में पटरी किसकी है सर? रेलवे की है।
स्टेशन किसका है? रेलवे का है। बिजली के तार किसके हैं? रेलवे के हैं। सिग्नलिंग सिस्टम किसका है? रेलवे का है। इंजन किसका है? रेलवे का है। वैगन किसका है? रेलवे का है। कोच किसका है? रेलवे का। किस बात की आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं सर? आपका जो कंसर्न है, I can address your concern, but point is it should be very clearly, if you ask a specific thing, I'll be able to address your concern about that. As far as the employees of any PSU is concerned, there is a clearly laid down policy and the practice has evolved over last many decades now. It's not something new that the government is doing. This practice has evolved over last many decades. There is precedent available. Based on that precedent, government is working, sir. Mani Thambidurai. Sir, Honorable Railway Minister, sir, I want to. Here you have given the statement about the lands, railway stations, how. That I want to know the Honorable, from Honorable Minister through you, sir. See, here, there are a lot of encroachments are there, railway stations, land. Then how you are going to vacate? Otherwise, when rehabilitating them, how you are going to help them? That is the question I want to know, because as a railway minister, I want to see that, because of. This question is different from the main question. No, only railways I want to please. Railways. That next. So now we go ahead to question number 138, Sri GVL Narsim Rao. This is the. Manya Mantri. First supplement. The question pertains to the states of Andhra Pradesh and Uttar Pradesh, so the mic is not on. It's on already. Sorry. So the question pertains to the industrial nodes coming up under various corridors in Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. And post bifurcation, Andhra Pradesh has turned out to be an agrarian economy needing a lot of rapid industrial progress. 2 national investment manufacturing zones have been sanctioned in the past along with the corridors, but they have not been taken up by the state government. So please even put your question. So the question is, unlike any other state, Andhra Pradesh has received 5 industrial cities under 4 different corridors, 3 different corridors. My question to the Honorable Minister is, the progress of the state government in terms of identification of land and the constitution of SPV seems to be very low. So what is the action that the ministry can take or contemplate to prompt and propel state of Andhra Pradesh into action? Thank you. In ensuring that these 4 industrial cities come up quickly? Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, the government is very committed to the development of Andhra Pradesh and has consistently come up with several projects which will support industrial growth in the state. As the Honorable MP rightly mentioned, we have been approving a number of projects there. We have in quite a lot of detail given in the answer the status of each of the projects. But at the end of the day, we can only implement the project when the state government takes effective steps in procuring the land, ensuring availability of contiguous land, so that the development work can go on. For example, if we take only the Krishnapatnam node under Chennai-Bengaluru Industrial Corridor, it has about 2,500 hectares, 2,500 acres to be procured. So far, about 2,091 acres are procured, which is a good development. But either they tell us that this is it, we'll not be able to get more, otherwise we have to wait for the whole thing. Similarly, and that has also been transferred, some of it in March, some of it in August 21. Similarly, they have to now appoint a contractor for doing the work. Now, center is not interfering in getting all these details done. The government has to appoint a contractor. They also have to look at a better tendering process, because I believe many contractors have objected to the current tendering process that they have planned. Similarly, on the Orvakal node, under the Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor, 9,800 acres were planned, sir. Our idea was to have a big project based on the state government's request. So far, only 4,742 acres are being proposed to be offered. They have informed us that only this much will be earmarked
for development. Now, when you have small projects, it becomes that much more challenging to invite large industry to come there. So I think it's important that the government, state governments also become more proactive so that these projects can be taken up quickly. Thank you. Second supplementary. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री उत्तर प्रदेश संबंधित है। उत्तर प्रदेश में 2 इंडस्ट्रियल नोड्स को सैंक्शन किया गया। एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में जो ऑलरेडी कार्यरत है, इसके बारे में मंत्री महोदय ने जवाब में कहा कि 156 एकड़ में नए प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं, वहाँ कुछ काम हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो 750 एकड़ की जो टाउनशिप है, इसमें किस प्रकार की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा हो रही है और उससे किस तरह का बढ़ावा प्रांत को मिलेगा, रीजन को मिलेगा? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया, ये दिल्ली के नजदीक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में लगने जा रही है। इसके लिए भारत सरकार ने 617 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसके प्रोग्रेस को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए। अब सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा, उसमें मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स भी पूरे हो गए हैं। सड़क, बाकी सर्विसेज, यूटिलिटीज, बिजली का काम, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ये सब काम होने के बाद अब तक 5 प्लॉट 150 एकड़ के करीब अलॉट भी हो गए। अब ये जब प्रोजेक्ट्स को अगर हम गति देते हैं, समय पे राज्य सरकार सहयोग करे, समय पे डेवलपमेंट हो जाए प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो प्लग एंड प्ले जब हो जाता है और लोगों को सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिलती हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तेज गति से काम भी हुआ, पैसा भी, निर्धारित पैसा भी दिया गया। ऑलरेडी 5 यूनिट्स ने 150 एकड़ ले लिया है और मैं समझता हूं इससे लगभग 58,000 लोगों को सीधे नौकरी का साधन बनेगा और इस 58,000 को तो सीधा मिलेगा। इसके अलावा एक बार जब इंडस्ट्रियल टाउनशिप आती है, यूनिट्स आते हैं, तो उनकी एंसिलराइजेशन होती है, एंसिलरी यूनिट्स आती हैं, ढाबे खुलते हैं, होटल खुलते हैं, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर, एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि हम सभी माननीय सांसद अपने अपने राज्य में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे तेज गति से इम्प्लीमेंट किया जाए, राज्य और केंद्र सरकार मिल के काम करे, मिल के तेज गति से जब प्रगति होगी। और एक छोटी जानकारी दे दूं माननीय सांसदों को आपके माध्यम से, क्योंकि ये विषय थोड़ा बहुत सबके ध्यान में रहे तो अच्छा रहेगा। एक गति शक्ति नाम का एक प्रधानमंत्री गति शक्ति एक सिस्टम अब हमने डेवलप किया है, जिसका लॉन्च हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इससे इन सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बड़ी सुविधा होगी, सब चीजों को एक साथ जोड़ के एक ही पोर्टल के ऊपर लाया गया है। और अगर हमारे माननीय सांसद चाहें तो हम एक स्पेशल प्रेजेंटेशन पीएम गति शक्ति की कर सकते हैं आपके सुविधा, आपके आदेश अनुसार, जिससे सभी माननीय सांसदों को भी आइडिया आएगा कैसे भविष्य में देश की विजनरी प्लानिंग चल रही है। थैंक यू। श्री कनक मेहला रविंद्र कुमार जी। Thank you, sir. Andhra Pradesh has been established, bifurcated in the year 2014. Now, it can be seen from the answer from the Honorable Minister. As far as Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor is concerned, only Oracle node is only identified. But the project, whether the project is any time-bounded, and if it, what are the funds allocated, whether any cooperation is required from the government of Andhra Pradesh, why this project is not, there is no progress at all. Thank you. Again, repeat your question. Well, I think I just mentioned in the reply to the first supplementary that the Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor, first of all, it was planned for 9,800 acres. Now the state government has divided and said we'll give you 4,742 acres, and right next to that, they are developing 4,700 they are developing a 4,500 acre separate industrial park of their own,
with much lesser infrastructure. So now here is a very funny situation. We have a project that was planned for about 10,000 acres. Now you've cut it down to half and said we'll only give you half the land, half we'll develop on our own. The infrastructure is different in both. We are duplicating the work, and now there will be competition between the two industrial projects. So I would urge the honourable member through you, sir, to talk to the local government to see how this can be made a more integrated project as was originally envisaged. Thank you. Srimati Jaya Bachchan ji. जी आप लीडर ऑफ द हाउस हैं तो यहाँ जो भी बोलेंगे बिल्कुल पॉइंट में बोलिए। ग्रेटर नोएडा की बात कर रही हूँ, इतना सारा विजन दिखाया, एक्शन कब तक होगा ये हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद। मतलब हमारी बहन को लगता है कि मैं पॉइंट पे नहीं बोलता हूँ, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। मुझे तो लगा कि लोग कहते हैं मैं ज्यादा डिटेल देता हूँ, जितनी देरी चाहिए उससे ज्यादा। नहीं, वो जयराम जी आपकी बात आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो आपके समय के काम का सिलसिला आजकल नहीं होता है। आजकल सीधा बोलते हैं, इससे लोगों को कुछ तकलीफ भी होती है। मान्य जवाब मांग रही हूँ, घुमा फिरा के मत बोलिए, सीधा बोलिए। आपके बीच में मुझे कुछ और जानकारी दे दी, उनको शायद पुराने बीते दिन याद आ गए। सवाल मैंने किया, मुझे जवाब दीजिए, उनको क्यों दे रहे? हाँ, उत्तर प्रदेश का मैंने अभी अभी ग्रेटर नोएडा की जिक्र की। आपने जैसे कहा, नोएडा का जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ये जमीन भी मिल गई है, 617 करोड़ रुपए भी इस पे खर्चा दे दिया गया है राज्य सरकार को, और मेजर वर्क मैं अभी बता रहा हूँ, तो वही तो बता रहा हूँ। और तेज गति से राज्य सरकार ने सड़कें भी बना ली, यूटिलिटीज भी प्रोवाइड कर दी, पावर ट्रांसमिशन लाइन भी लगा दी, ड्रेनेज की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम भी खत्म कर दिया, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन भी कर दिया। अब ये सब काम खत्म हुआ, इसीलिए ऑलरेडी 5 बड़े यूनिट्स जिन्होंने 156 एकड़ खरीदने का निर्णय लिया है, वो भी आ गए, उन्होंने खरीद लिया और वो उस पर अभी अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो ये साधारणतः ये दर्शाता है कि अगर राज्य सरकार संवेदनशील हो, राज्य सरकार अच्छा काम करे, तेज गति से करे, जो योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। रोज हम देख रहे हैं कैसे प्रोजेक्ट्स शुरू भी हमारी सरकार करती है और उसका समापन भी समय सीमा पे खत्म होता है। अब वो जमाना गया कि उद्घाटन एक सरकार करती थी, प्लानिंग दूसरी करती थी, डिजाइन तीसरी करती थी, कॉन्ट्रैक्ट चौथी देती थी। वो उत्तर प्रदेश के पुराने दिन आप भूल जाइए, अब नए दिन, अच्छे दिन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तेज गति से काम हो रहे हैं, ईमानदारी से, गति से जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इससे मुझे लगता है आपको प्रसन्न होना चाहिए। जिस राज्य को आप प्रतिनिधित्व करती है, उधर इतना अच्छा काम हो, उसकी तो सामूहिक सराहना हो, मुझे लगता है उसी में सबका भला है। माननीय कांता करदम जी। धन्यवाद सर। प्लीज सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा एक सवाल था। उत्तर प्रदेश के नगरों के उद्योग शहरों के रूप में चिन्हित करने से वहाँ के उद्योग और उनमें काम करने वाले कामगारों को क्या लाभ बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही। प्लीज कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही। द्वारा बोलती हूँ, प्लीज टेक योर सीट प्लीज। सर, उत्तर प्रदेश के नगरों को औद्योगिक शहरों के रूप में चिन्हित करने से वहाँ के उद्योग सवाल जवाब का उनमें काम करने वाले कामगारों को क्या लाभ मिलेगा? सभी पक्षों को कह रहा हूँ, प्लीज सभी पक्षों को कह रहा हूँ। मैंने अभी माननीय सदस्य को अवगत कराया कि नोएडा में जो टाउनशिप बन रहा है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, उसमें 58,000 लोगों को तो सीधा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जब पूरा इकोसिस्टम बन कृपया बैठकर आपस में बात न करें। सीनियर मेंबर टाउनशिप आपस में बात न करें। चारों तरफ और एंसिलरीज आती है, ढाबे बनते हैं, होटल बनते हैं, तो एक प्रकार से एक बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रेटर नोएडा में भी तैयार हो रहा है और आगरा में भी तैयार हो रहा है।
जहां 1060 एकड़ के करीब जनवरी 2021 में राज्य सरकार ने उपलब्ध कराने की हमें कंफर्मेशन दी। उसके लिए भी ऑलरेडी कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया है जुलाई 2021 में, और उससे काम शुरू कर दिया सर्वे का और बेस मैप का। तो यही है तेज गति से काम करने का लाभ, कि प्रोजेक्ट जल्दी लगते हैं और उसका लाभ जनता तक पहुंचे। मैं मेरा आग्रह सभी सदस्यों से अपने सवाल में ब्रीफ हों और माननीय मंत्री भी अपने सवाल में ब्रीफ हों, कृपया जवाब में भी, तभी हम आगे और सवालों को ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 139 श्री कामाख्या प्रसाद तासा। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन 139 आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द बात न करें। आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सप्लीमेंट्री। थैंक यू सर। मैं मंत्री जी का जवाब पढ़ा, मंत्री जी अच्छा जवाब दिया है, जो पॉइंटेड जवाब है, लेकिन मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं, क्या एनक्रोचमेंट जो है ये बहुत बड़ा समस्या है, ऑल इंडिया पे एनक्रोचमेंट बहुत बड़ा समस्या है, और पुअर पीपल जो ज़्यादातर बीपीएल लेवल के नीचे हैं उन लोग एनक्रोचमेंट करते हैं। ये उन्होंने जवाब दिया है कि अल्टरनेटिव रेवोल्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट एंड अर्बन बॉडीज रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या उससे रेलवे का कुछ बातचीत होता है कि नहीं, और होता है तो कैसे हुआ? दूसरा बात, रेलवे अभी एक ही प्रश्न वो उसमें सर रिलेटेड एक ही प्रश्न प्लीज। ऑनरेबल मेंबर ने जो कंसर्न रेज किया है, राज्य करीब 2 या 3 राज्य मेरी पर्सनल जानकारी में है। मुंबई में बहुत अच्छा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एनक्रोचमेंट रिमूवल हुआ है। साथ ही सूरत के पास में उधना में बहुत अच्छी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एनक्रोचमेंट रिमूवल हो रहा है सर। ये समस्या आज की नहीं सर। एनक्रोचमेंट ऑन रेलवे लैंड बहुत पुरानी समस्या है। इसको बहुत सेंसिटिवली और बहुत संवेदना के साथ डील किया जा रहा है। कहीं पर भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा है जिससे कि किसी के ऊपर कोई अचानक कोई मार पड़े। सेकंड सप्लीमेंट्री और एक ही सवाल। थैंक यू सर। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो एनक्रोच लैंड है उसको वैकेंट किया गया, इसको ड्राई पोर्ट अथवा ट्रक्स का पार्किंग और अल्टरनेटिव यूज के लिए कुछ रेलवे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ सोचा है क्या, और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को इसको संस्थापित करने का कुछ प्लान है क्या भविष्य में? पटरी के दोनों तरफ नैरो स्ट्रिप में एनक्रोचमेंट होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया अभी तक। तो ये जो लैंड फ्री होती है, ये मोस्टली किसी न किसी नए प्रोजेक्ट के लिए काम आती है। मान लीजिए डबलिंग करना है, 3rd लाइन बिछानी है, या इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए थोड़ी और स्पेस चाहिए, उसके लिए यूज़ होती है। जहाँ पर भी संभव है दूसरे यूजेस के लिए, पार्किंग हो या दूसरी कोई फैसिलिटी के लिए, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है सर। धन्यवाद। श्री अजीत कुमार भूइयों प्लीज। During lockdown, many, I should say this is B class or unmanned stations, and local trains have been shut down or stopped or whatever it is suspended. Please, पीछे बैठकर आपस में बात न करें। In Assam, I'm talking about Assam particularly. I have seen when the local passengers who are traveling for the job, medical treatment and education, all are facing a lot of problems. In another part of the country, B-class railways stations may have been opened. Please put your question. Yes, you have to put question. Are running. What is the intention of the government regarding Assam? I am citing some example from Dangori, Tinsukia, Jorhat, Tinsukia, Naharlagar, Arunachal, Simaluguri, Dibrugarh town, Rongia, Guwahati, they are all shut down and stopped. So NCOSA also taking the advantage of the situation. Thank you. Question. Manu, please. Honorable Chairman sir, नॉर्थ ईस्ट के लिए भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कदम उठाए सर। पहली बार प्रत्येक नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैपिटल तक रेलवे ले जाने की परिकल्पना पे जोर से काम चल रहा है सर, बहुत तेजी से। आसाम में मेरे साथी अभी ये भी जानते हैं सर, किस तरह से पहली बार इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजलीकरण आसाम तक पहुंचा। पिछले साल डबलिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, स्टेशंस का डेवलपमेंट हो, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो सर, नॉर्थ ईस्ट में और स्पेशली आसाम के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं।
आपने पूछा कि असम के लिए इंटेंट किया, दैट्स व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग दिस। असम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और उसके लिए रेलवे के प्रोजेक्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद। माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, प्लीज 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 माननीय नहीं सप्लीमेंट्री एक जो सवाल पूछा उसको दे दिया गया मौका, सवाल इनका नहीं था माननीय मनोज जी। और कृपया आप लोग जब भी हस्तक्षेप करते हैं ध्यान रखें दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलता। प्लीज माननीय उपसभापति महोदय धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिए मैं जानना चाहता हूं कि ये कोरोना के वक्त में प्लेटफॉर्म टिकट से लेके काफी दाम अभूतपूर्व जो बढ़ाए हैं और जो गुजरात की ट्रेनें कोरोना के वक्त में बंद हुई है, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि जब सारे फ्लाइट्स प्राइवेट ऑपरेटर्स ने भी नॉर्मल कर दिया, सब नॉर्मल हो गया, तो गुजरात में जो ट्रेनें बंद हुई वो कब शुरू होगी? और कोरोना के वक्त में आपने जो अभूतपूर्व दाम बढ़ाए हैं प्लेटफॉर्म टिकट से लेके और चीजों के, वो कब कम करोगे? धन्यवाद। सर, ऑनरेबल मेंबर हाउस को सही सूचना नहीं दे रहे सर। सही बात। ये पहली बार नहीं है, इससे पिछले प्रश्नों में भी इस तरह से किया गया और ये बहुत अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। नहीं सर, प्लीज प्लीज। सर, कोरोना के टाइम में देश भर में भारतीय रेलवे ने जिस तरह से चाहे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे श्रमिक स्पेशल्स चला के देश के सारे के सारे माइग्रेंट लेबर्स को पहुंचाने का काम हो, चाहे लॉकडाउन के टाइम में सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो, इस काम को क्या आप नकार सकते हैं? सर, कोई नहीं नकार सकता सर। ये काम बहुत ही अच्छा काम था। प्लेटफॉर्म टिकट की बात है सर, प्लेटफॉर्म टिकट की बात है, प्लेटफॉर्म टिकट की बात है सर। प्लेटफॉर्म टिकट आज की तारीख में देश भर में सब जगह सामान्य लेवल पे है और एक सर प्लीज बीच में प्लीज सर एड्रेस टू द चेयर प्लीज। सर, लंबे टाइम से एक इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह का एम्पावरमेंट डीआरएम्स को दिया गया था, जो कई वर्षों से, आज नहीं सर 30-40 वर्षों से, कि जब भी उनको क्राउड कंट्रोल करना हो या कहीं पे वो स्टेशंस पे थोड़ा ध्यान रखना हो तो तब वो टेम्परेरीली बढ़ा सकते हैं। तो जहां भी टेम्परेरीली बढ़ाया गया था वहां पे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म टिकट कम कर दिया गया है। सही है, थैंक यू। श्री राम विचार नेताम। बहुत ही एक मौलिक प्रश्न है महोदय। लॉकडाउन के बाद पूरे ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के रूप में चलना शुरू हुआ और स्पेशल ट्रेन का यात्री किराया जहां काफ़ी अधिक है वहीं लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता और गाड़ियां पूरी खाली रहती हैं। मेरा आपसे यही आग्रह है कि इसे कब से सामान्य तरीके से आप उसे बहाल करेंगे, चलाना शुरू करेंगे? और इसके साथ ही साथ क्या जो यात्री सुविधा जो मिला करता था बेड रोल और बाकी सुविधा, वो सुविधा कब से आप बहाल करेंगे? एक में दो सवाल ना करें, एक ही सवाल। हम लोग यात्री तो ट्रेन से ही यात्रा करते हैं महोदय। प्लीज प्लीज। हो गया, संबंधित है लेकिन बहुत सारे अलग अलग विषय इसमें उठ रहे हैं सर। ऑलरेडी नॉर्मल एक्सप्रेस और मेल ट्रेन नॉर्मल फेयर पे चल रही है सर, और माननीय सांसद महोदय को अपनी डेटा अपडेट करना चाहिए। ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो चुका है सर वो। रही बात बेडरोल की, बेडरोल हम लोग चालू करने वाले थे लेकिन जैसे ही ये ओमिक्रॉन का थ्रेट आया है तो हम लोग इसमें बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेंगे और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है सर जिसके ऊपर कोई हड़बड़ी में स्टेप लिया जाए। देश भर की सुरक्षा का सवाल है, सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा का सवाल है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 140 माननीय रेवती रमन सिंह जी। पहला सप्लीमेंट्री माननीय रेवती रमन सिंह। माननीय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है और आपने जो जवाब दिया है अगर आप देखें तो मात्र 120 करोड़ रुपया आपने खर्च किया है। माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितना शेयर प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना का है और कितना मुख्यमंत्री फसल योजना का है, और इतना कम राशि मांगने का क्या औचित्य है? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न का जवाब चाहे कि उत्तर प्रदेश के अंदर फसल बीमा और एनडीआरएफ और फंड की जो जिक्र किया है, ये सही है कि वहाँ पर आपदाई कुछ किसानों का नुकसान भी हुआ। जैसा कि एसडीआरएफ फंड के प्रावधान है उसके अनुसार हमने समय पर एसडीआरएफ फंड से भी पैसा रिलीज किया, लेकिन आपने स्पेसिफिक फसल के बारे में प्रश्न पूछा था कि फसल का कितना नुकसान हुआ, तो उस फसल के अंदर जो नुकसान हुआ वो 120 करोड़ जो हुआ है वो जवाब दिया है। लेकिन कुल जो नुकसान हुआ है जिसमें मकान का भी नुकसान हुआ है और पशुओं का भी नुकसान हुआ है, जान का भी नुकसान हुआ है, वो सारा फिगर अगर देखा जाए तो वो फिगर जा रहा है टोटल 1155.72 करोड़। ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ फंड के तहत टोटल फंड गया है वो उत्तर प्रदेश को 1155.72 करोड़ रुपए। और दूसरा, आपने फसल बीमा योजना के तहत भी जैसा जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश को फसल बीमा योजना के तहत कितना फंड एलोकेट हुआ है, तो उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019-20 में 1086.56 करोड़ रुपए, और उसके बाद में अभी भी जो नुकसान हुआ है, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा अभी कुछ नुकसान इस साल भी हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि अभी बाढ़ और उसके अंदर जो नुकसान हुआ उसके अंदर भी सरकार ने 471.77 करोड़ रुपए रिलीज टोटल किए। उसमें से 10.59 करोड़ लाख किसानों को 365 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए गए। तो मैं सोचता हूं कि जो आपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था उसमें सिर्फ फसल का पूछा था, तो उसमें वो था, बाकी नुकसान। धन्यवाद माननीय। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मानवर, वो एकदम गलत है। इसलिए गलत है मानवर कि 24 करोड़ की आबादी में इन्होंने कितना पैसा खर्च किया है। इसका कारण है मानवर, सवाल पूछ जी कि मानवर ये जो असेसमेंट आप करते हैं फसल का नुकसान का, उत्तर प्रदेश में अतिवृष्टि भी हुई और ओला भी पड़ा। न तो आपने ये बताया कि कितने जिले ओलावृष्टि से प्रभावित थे, न तो आपने ये बताया कि अतिवृष्टि से कितने जिले प्रभावित थे। मानवर, मैं ये जो जांच करवाते हैं मानवर, ये इतना गलत जांच करवाते हैं कि बीमा कंपनियों को ज्यादा फायदा होता है। जी जी, आप सवाल पूछे माने रेवती रमेश। बीमा कंपनियों को ज्यादा फायदा होता है, किसानों को कम होता है। सवाल पूछे। सेकंड सवाल। क्या इसके लिए सरकार फिर से जांच करवाएगी भविष्य में कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिले, बीमा कंपनियों को न मिले? माननीय उपसभापति महोदय जी, जैसा कि सदस्य ने आरोप लगाया है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा अगर पीछे को जाकर देखें और अभी के अंदर जो संशोधन किया गया फसल नई बीमा नीति के अंदर भी, तो उसके अंदर एक तो जो फसल बीमा उसके अंदर प्रीमियम के अंदर पहले जो कंपनियां थी, हालांकि ये इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि पहले 25% से लेकर और 62% तक प्रीमियम कंपनी लेती थी, लेकिन अब इस सरकार के आने के बाद में अब उस प्रीमियम को एक रेस्ट्रिक्ट लगा दिया है कि 25% रबी और उसके अंदर जो सूखा क्षेत्र उसमें 30% से अधिक प्रीमियम नहीं ले सकती। और उसके बाद में उसके अंदर जैसा कि एक ये भी है कि फसल बीमा है उसको इस तरह से कर दिया है कि एक अनिवार्य नहीं है, वो स्वैच्छिक कर दिया है। और साथ ही मुझे लगता है कि जहाँ 1 हेक्टर के ऊपर क्लेम मिलता था, उसके स्थान पर अब क्लेम जो मिलता है वो 2 हेक्टर के ऊपर देना प्रारंभ किया है। और पहले 50% नुकसान होता था, उस समय क्लेम मिलता था, उसको घटाकर अब 33% नुकसान के ऊपर भी किसान को क्लेम दिया जाना प्रारंभ किया गया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से
मोदी जी की सरकार बनी उसके बाद में नई फसल बीमा नीति के अंदर कई संशोधन किए हैं, जिसमें किसानों को विशेष ध्यान रखते हुए और किसानों को किस तरह से लाभ मिले उसी दृष्टि से ध्यान में रखकर काम किया गया। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, किसी भी माननीय मंत्री के अगर उत्तर से आप असंतुष्ट हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है रूल्स और प्रोसीजर के तहत, कृपया उसको फॉलो करिए। माननीय श्री विजयपाल सिंह तोमर। सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान जो फसलों का हो रहा है उसमें 33% नुकसान पर 1.5 गुना करने का किया है। मैं जानना ही चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि जो सर्वे होता है इस प्राकृतिक आपदाओं का, उसका मैकेनिज्म क्या है? माननीय उपसभापति महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने क्वेश्चन किया है तो उसमें प्राकृतिक आपदा की जैसे ही राज्य से सूचना प्राप्त होती है उसके बाद में हमारी जो टीम है यहाँ से वहाँ से सूचना या ज्ञापन प्राप्त होता है और उसके बाद में यहाँ पर मंत्रालय की कमेटी का गठन होता है और मंत्रालय की कमेटी है वो तुरंत वहाँ पर राज्य के अंदर जाती है और वहाँ पर जो हाई लेवल कमेटी है जिसके अंदर आकर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री जी करते हैं और उसके अंदर इसके बाद में जो उसके डेटा के आधार पर जो एक नॉर्म्स के अनुसार जितना आकलन बताया जाता है उसके आधार पर उसको किसानों को मुआवजा अवेलेबल करवाया जाता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहले जो किसानों का आकलन का राज्य से जब ज्ञापन आता था और उसके बाद में यहाँ से टीम जाती थी, लेकिन अब माननीय गृह मंत्री जी के विशेष प्रयासों से, माननीय अमित शाह जी के प्रयासों से ये हुआ कि जैसे ही अगर मीडिया से भी सूचना मिल जाती है कि वहाँ पर ऐसी आपदा आई है जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, तो हम राज्य के ज्ञापन का भी इंतजार नहीं करते, हम तुरंत प्रभाव से यहाँ से टीम को राज्य के अंदर भेज देते हैं और वो तुरंत आकलन लाती है, ले करके आती है और उससे ये निश्चित हो जाता है कि उनको किसानों को नुकसान जो हुआ वो समय पर उनको भुगतान हो जाए। इस दृष्टि को लेकर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय अभी इस सरकार ने लिया। धन्यवाद। माननीय मनोज कुमार झा जी। महोदय, मेरा प्रश्न उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के संदर्भ में है। माननीय मंत्री महोदय, बिहार के बड़े हिस्से में धान की फसल का बहुत नुकसान हुआ, क्या इस दिशा में आपको सूचना आई और अगर आई तो केंद्र की ओर से क्या सकारात्मक पहल लिए गए? माननीय उपसभापति महोदय जी, बिहार से संबंधित क्वेश्चन किया है। बिहार से संबंधित मुझे ये जहाँ तक जानकारी है कि मैंने पहले ही उत्तर में आपको कह दिया है पहले प्रश्न के अंदर कि हमें जैसे ही सूचना मिलती है तो तुरंत हमारी टीम जाती है, लेकिन स्पेसिफिक आपने बिहार से संबंधित मुझे प्रश्न किया है तो इसके ऊपर जानकारी लेकर मैं आपको आज ऑफिस में अवेलेबल करूँगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 141 माननीय दिग्विजय सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 140। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री माननीय दिग्विजय जी। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के लिए मक्का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में मक्का बोई जाती है। जो उत्तर आया है उसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि मध्य प्रदेश में मक्का की कहीं खरीद हुई है, जबकि मुझे मालूम है 2019-20 में बड़ी मात्रा में राज्य सरकार ने मक्का की खरीद की थी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में 2019-2020 में मक्का की खरीद की गई थी और कितनी की गई थी? धन्यवाद। उपसभापति महोदय, हमारे सांसद वरिष्ठ और राजनीतिक बहुत लंबा अनुभव है। ये मोटा अनाज खरीदने का राज्यों का विषय है। राज्य अपने भोक्ताओं को, कंज्यूमर को यदि मोटा अनाज उपलब्ध कराना चाहते हैं तो राज्य सरकार ने खरीद करके उनको बांट सकते हैं। दूसरा सप्लीमेंट्री जानकारी मैंने पूछा था, क्या केंद्र सरकार को इस प्रकार की जानकारी है कि नहीं? शायद उनके पास जानकारी ना हो, लेकिन इसके बाद दूसरा मेरा प्रश्न यह है, क्या ये बाध्यता है केंद्र सरकार की फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में? मैंने फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी देखी माननीय, ये कोई बाध्यता नहीं है कि राज्य सरकार निवेदन करेगी तो ही आप खरीदेंगे। केंद्र सरकार भी इस मामले में खरीद कर सकते हैं।
इसलिए मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आदिवासी क्षेत्रों में मक्का खरीदने के लिए केंद्र सरकार कोई प्रोत्साहन देगी? धन्यवाद। सिंस इन्होंने बहुत स्पेसिफिक बार बार कह रहे हैं और शायद इससे पूछ रहे हैं कि थोड़े समय के लिए उनकी सरकार थी, तो इनको लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा नहीं, प्लीज काम कर लिया। 2016-17 में प्लीज तो सीधा सीधा जवाब सुनिए मेरी बात सुनिए। 19-20 में खरीद की गई, कोई मक्का की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। 19-20 में मक्का की कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। प्लीज हाँ, आपके दूसरे प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। दूसरा प्लीज। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो 16-17 का जिक्र किया है, 16-17 में 50,000 मैट्रिक टन मक्का खरीदा गया था। 19-20 नहीं, 19 आपने 16-17 भी पूछा, इसलिए मैं 16-17 का भी रिकॉर्ड लेकर के आई हूँ। 19 क्योंकि 16-17, 18, 19 और 20-21 में मध्य प्रदेश में मोटा अनाज खरीदा गया है, मक्के की खरीद नहीं हुई है। यदि वहां की सरकार खरीदना चाहे तो खरीद सकती है। मिस्टर अंबुमणि रामदास जी। So even though this question is relating to procurement of maize in Madhya Pradesh, I just like to ask the Honorable Minister whether they have a national policy of procurement of highly nutritious, low-cost millets for the children for the midday scheme. Thank you. This question is related to Madhya Pradesh, as you mentioned. If Minister likes to. Ji. Honorable Chairman, sir, it is very much permitted that state governments can send a proposal under the DCP procurement system if they wish to replace rice and wheat that is being distributed under the food security program by any of these other products like ragi or maize or jowar, all these millets. Now, that can only be procured by them on the central pool as a replacement of what is being procured under rice and wheat and distributed. If any state government chooses not to procure rice and wheat and procure these other coarse grains and distribute it, they have to come to the central government and we allow that. But in addition to what is the requirement of the state, that procurement will be at to the account of the state government, not the central government. Thank you. माननीय सुशील कुमार मोदी जी। महोदय, बिहार सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि सेंट्रल एजेंसी मक्के की खरीद करे, लेकिन नाफेड ने एक शर्त लगा दिया कि जो खरीद करेंगे उसको ऑक्शन करेंगे और ऑक्शन की जो राशि होगी और एमएसपी की राशि का जो अंतर होगा उसका भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ेगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा इस तरह की शर्त न लगाई जाए, क्योंकि बिहार में बम्पर क्रॉप होती है और अगर नाफेड खरीदता है तो समर्थन मूल्य पर उसको खरीदे अंतर की राशि का भुगतान राज्य सरकार को करने के लिए बाध्य न किया जाए। मैंने अभी बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि केंद्र सरकार इन मिलेट्स को तभी खरीदने की अनुमति देती है राज्य को अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनएफएसए में उसको वो रिप्लेस करके ये बांटना चाहे, लेकिन उसके अधिक जो खरीदते हैं वो नाफेड सिर्फ एक सपोर्ट देने के लिए वहां पे खड़ी होती है। वैसे नाफेड नॉर्मली ये प्रोक्योरमेंट नहीं करती है। राज्य सरकार ने अगर प्रपोजल भेजा होगा, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, पर अगर भेजा होगा प्रपोजल तो साधारणतः एज अ फैसिलिटेटर, नॉट एज अ एमएसपी प्रोग्राम प्रोक्योरमेंट। अगर राज्य सरकार चावल और गेहूं को रिप्लेस करके ये चाहती है तब ये प्रश्न उठेगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 142 माननीय ब्रिजलाल जी। माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 142। पहला सप्लीमेंट्री माननीय ब्रिजलाल जी। सर, मंडियों में महिलाओं की संख्या काफ़ी है, लेकिन मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर महिला फ्रेंडली नहीं है। ना तो महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट हैं और ना ही अलग से बैठने की जगह, जिससे मंडियों में उन्हें काम करने में कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं
कि अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटियों में क्या कोई परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे महिलाओं को सुविधा मिल सके? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, महिलाओं को प्राथमिकता में रखकर भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं और उसमें जैसा मंडी के अंदर कहा गया है, तो स्वच्छता अभियान के तहत भी आपको जानकारी में होगा कि पूरे देश के अंदर सब जगह ऐसी सुविधाएं जो करनी चाहिए थी वो भारत सरकार के द्वारा सब जगह की गई है और मंडी के अंदर भी इसके अंदर विशेष निर्देशित किया गया था और सब जगह ऐसी व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर भी ऐसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता मंडी को लगती है और माननीय सदस्यों जी को भी लगती है, तो इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके तहत अगर कोई भी मंडी इस व्यवस्था के लिए अगर वहाँ से व्यवस्था के लिए अगर फंड की आवश्यकता महसूस करती है तो भारत सरकार इसके लिए भी फंड की व्यवस्था करने के लिए इसमें प्रावधान किया हो। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय बृजलाल जी। महोदय, यूनाइटेड नेशन खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान 32% है। अक्सर देखा जाता है कि रोजगार के तलाश में जो पुरुष सदस्य हैं वो शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे खेती की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि विगत 5 वर्षों में क्या महिला किसानों की संख्या बढ़ी है और बढ़ी है तो कितनी? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, जैसा कि सदस्य ने पूछा है कि कितनी संख्या बढ़ी है, वैसे तो इसका आकलन जैसा कि रजिस्ट्रार जनरल MHA के अनुसार 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार अभी तक जैसा कि महिला किसानों की संख्या है वो 3.60 करोड़ है। ये आंकड़ा वहाँ उस समय का दर्शाया हुआ है। और उसके बाद में ये जो महिला कृषक जो महिला कृषि श्रमिक हैं उनकी भी संख्या 6.15 करोड़ है। ये उस समय के आंकड़ों के अनुसार है। लेकिन जैसा कि महिलाओं के लिए विशेष कई ऐसी योजनाएं भी प्रारंभ की है और महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो किसान सम्मान निधि का पैसा है, वह किसान सम्मान निधि का पैसे का जो फिगर है उसके अंदर भी महिलाओं को डायरेक्ट उनके खाते के अंदर भी पैसा पहुंचाया जा रहा है। और उसके अंदर आज 11 करोड़ से ऊपर जो किसानों को पैसा किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये दिया जाता, उसमें से 2.89 करोड़ महिलाओं के खाते के अंदर डायरेक्ट किसान सम्मान निधि का पैसा भी पहुंचता है इस देश के अंदर। थैंक यू। श्रीमती यमी याग्निक जी। Honorable Chairman, sir, I would like to know from the Honorable Minister, that we have a large force of women farmers and women farm laborers. You have depended on 2011 census, but you do not have the correct figures of today. That is one point. Despite showing that there is technical assistance given to women farmers, are you giving any safety package or are you coming up with safety measures where women farmers and women farm laborers feel safe in the fields when they go for work? Thank you. ऐसा है कि महिला किसानों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की है। उनके अंदर उनको किसानों को किसान महिलाएं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनके लिए स्कीमें भी प्रारंभ की गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी है, नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक भी है और हमारी जो आत्मा योजना के तहत उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इस तरह से कई योजनाएं प्रारंभ की गई है जिसमें आपने सुरक्षा का बात की है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसके ऊपर भी हम विशेष ध्यान देते हैं। वहाँ पर जहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था रहती है और देश के अंदर भी कृषि को महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से जो गृह मंत्रालय के द्वारा भी और जो नॉर्म्स है उसके अनुसार भी उनकी सारी सुरक्षा को मद्देनजर रख के ही काम किया जाता है। श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा। श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा। धन्यवाद महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अब महिला किसानों द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में कोई विशेष योजना चलाई जा रही जिससे कि। धन्यवाद। एक ही सवाल। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी,
उत्तर प्रदेश के अंदर भी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और उनके लिए योजनाएं भी प्रारंभ की गई और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में 30% भागीदारी जो है वो महिलाओं की होती है और इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। लेकिन विशेष जैसा कि MTMA की योजना के तहत भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 1,88,000 महिलाओं को इसका लाभ उनको मिला है और वैसे ही इसके अंदर महिलाओं का प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है उसके अंदर भी उत्तर प्रदेश में 33,664 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी देश के अंदर हैं उन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर भी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आने वाले समय के अंदर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और उसके अंदर वो किस तरह से अपनी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सॉर्टिंग, ग्रेडिंग की उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो अपने उत्पादन की वैल्यू एडिशन करके और मार्केट में बेचे और उससे उन किसान महिलाओं को अधिक लाभ मिले। इस दृष्टि पर भी किसानों महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाती है और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से हो या अन्य सब्सिडी की स्कीम है उसके अंदर भी महिलाओं को इसमें विशेष प्राथमिकता मिलती है। मोदी जी, हम सभी जानते हैं कि कृषि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र है। महिलाओं की भागीदारी सर्वांगीण रूप से बढ़े यह सरकार की प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र में भी जो योजनाएं संचालित होती हैं उनमें महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाए, यह स्कीम सुनिश्चित करती है। सरकार के प्रावधान और गाइडलाइन इस प्रकार से जारी की गई हैं। जहाँ तक बहन का सवाल है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी जो महिलाएं हैं RD डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक महिला सशक्तिकरण किसानों के लिए, महिला किसानों के लिए स्कीम चलती है। उसमें लगभग 1,39,00,000 से अधिक महिलाओं को मदद की जाती है। बाकी कृषि विभाग की जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चाहे को KBK करे, चाहे आत्मा के थ्रू हो, चाहे हमारा महिलाओं के लिए एक भुवनेश्वर में संस्थान है, उसके माध्यम से भी महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने का काम बहुत ही द्रुत गति से चल रहा है। PM किसान योजना के अंतर्गत भी उनका हिस्सा बहुत अच्छा है और ये और बढ़े, इस दिशा में भारत सरकार का सद प्रयत्न है। धन्यवाद। श्रीमती फौजिया खान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगी कि महिला किसान मजदूरों को हमारी सरकार महिला किसान मालक, अपने खेतों के मालक कब बनाएगी? क्योंकि देखा जाता है कि महिला किसान मजदूर ज़्यादातर देहातों में मजदूरी का काम महिला करती है लेकिन ज़मीन पुरुष के नाम पे होती है। तो क्या मंत्री महोदय ऐसा मिशन हो सकता है कि जो भी हम स्कीम चलाते हैं, जो योजना का फ़ायदा किसान को देते हैं, तो 7/12 पर महिला का भी नाम हो? ऐसा कंडीशन अगर हम लगा देते हैं तो हर महिला का नाम 7/12 पे आ जाएगा। धन्यवाद फौजिया खान जी। इस तरह का एक प्रयोग महाराष्ट्र में किया गया है। इस सुझाव पर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहें? अच्छा सुझाव है, कुछ कहना चाहें तो। अन्य बहन की भावना बहुत अच्छी है, वो महिलाओं को सशक्तिकरण और इस दिशा के अंदर इन्होंने बात रखी है और इसके अंदर जैसा कि राज्य का विषय है और राज्य में ज़मीन जिसके नाम की होती है और आज उसके अंदर कई स्टेटों के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर महिला जो होती है उनके नाम से भी रजिस्ट्री करवाई जाती है, तो उसके अंदर विशेष सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जाते हैं। आपकी मांग पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 143 श्री नारायण दास गुप्ता जी। माननीय सर, क्वेश्चन नंबर 143 फर्स्ट सप्लीमेंट्री sir, I just want to know from the Honorable Minister, because as per the rules amended in May 2021, it was mandated that e-commerce entities, they should be company, either Indian company or foreign company, as per the provision of Section 2, subsection 240 of the complaint. Why the partnership firm, individual or HUF were excluded? Or is there any program to re-notify these rules and to include these e-commerce entities also? Because the rules which were amended in May 21 have not provided any such stipulation. माननीय मंत्री जी, House stands adjourned
till 2:30 p.m. ऐसा कुछ है नहीं।